Good morning to all my dear students. In the previous video we have discussed about algebraic expression, about its terms, factors, constant, variables. Now today we will discuss about the types of algebraic expression and about coefficient. Uh, Types of algebraic expression are monomials, binomials, trinomial, quadrinomial, polynomial, and after that we will discuss about coefficient. What is coefficient? Okay. Now see monomial first. The types of algebraic expression monomial first. See this one first. An expression which contains only one terms are called monomial. Means मैंने कहा था कि मोनोमियल में मैंने कहा था कि टर्म क्या होता है, जब कोई नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड होके कोई नंबर या वेरिएबल मल्टीप्लाई और डिवाइड के रूप में एक दूसरे से जुड़ा रहे तो वो सारे एक टर्म कहलाते हैं. जैसे ही प्लस या माइनस बीच में लग गया टर्म अलग हो जाता है. इसलिए जैसे 2x दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ये एक टर्म कहलाया है. 7xy ये एक टर्म कहलाया है. 3x² क्योंकि सब मल्टीप्लिकेटिव साइन से जुड़ा हुआ है, इसलिए सभी एक टर्म्स कहलाए. ठीक है, तो दिस इज मोनोमियल. नाउ कम टू बायनोमियल. An expression containing two terms. Two terms means see here 3x minus 4. This is one term. This term is combined with the multiplicative sign. So this is one term and minus separate the 4 from 3x. So this one term is this and the term is this. So 3x minus 4 is two terms. 2x plus x. This is one term and this one is second term. So this is binomial. This is the example of binomial. Now trinomial, an expression containing three terms, three different terms. 3x plus 4y minus 7. See here the sign of plus or minus separate the terms. Okay, 3x is separated from 4y. 3x plus 4y minus 7. This is one term, second term, and this one is third term. This one is also same as previous one. So we can say that this is the example of trinomial. Means an expression containing three terms are called trinomials. Now quadrinomial. Quadrinomial having four terms. Means an expression containing four terms are called quadrinomials. See here 3xy plus 2x plus y minus 3. See here this one is first term, second term, third term, fourth term, all are connected with plus or minus sign. So we can say that all are separated from plus or minus signs. So this having quadrinomial. यानी कहने का मतलब है कि ये सब प्लस या माइनस के द्वारा सेपरेट किया गया है, इसलिए सेपरेट करने के बाद ये चार टर्म में बट गया, फोर टर्म में बट गया. तो फोर टर्म वाले एक्सप्रेशन को क्वाड्रिनोमियल कहते हैं. ठीक है. अब पोलिनोमियल किसे कहते हैं? एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू और मोर टर्म्स. यानी दो या दो से ज़्यादा टर्म्स को पोलिनोमियल का, जैसे बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, ये सभी पोलिनोमियल्स के अंतर्गत आते हैं. क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ओके. Clear this one? An expression containing two or more terms is known as polynomial. Any binomial, trinomial, quadrinomial, all these are belongs to polynomial. Clear? I hope you understand this. Now come to coefficient. In a product of numbers and variables, any of the factor is called the coefficient of the product of other number. Suppose here minus 3xy is given. ठीक है. अगर माइनस 3xy दिया हुआ है, ध्यान देंगे माइनस 3xy दिया हुआ है, अगर पूछा जाए इसमें कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो सब उसका कोफिशिएंट हो जाएगा. तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? माइनस 3y, तो x का कोफिशिएंट माइनस 3y हो गया. द कोफिशिएंट ऑफ, और y का पूछा जाएगा
अगर y का पूछा जाए कि y का कोफिशिएंट कौन है, तो y के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है -3x कोफिशिएंट, द कोफिशिएंट ऑफ y इज -3x एंड द कोफिशिएंट ऑफ x इज -3y। यानी कहने का मतलब जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाएगा उसमें जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। 5xy स्क्वायर, यहाँ अगर पूछा गया कि x का कोफिशिएंट क्या है तो हम बोलेंगे 5y स्क्वायर। अगर पूछा जाए कि y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है तो 5x। अगर उसी प्रकार पूछा जाए कि 5 का कोफिशिएंट क्या है तो xy स्क्वायर। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। अब अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द न्यूमरिक कोफिशिएंट इन -3xy, तो हमेशा याद रखें न्यूमरिक कोफिशिएंट की जब भी बात की जा रही है यानी कि नंबर की बात की जा रही है तो उसमें जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वो न्यूमरिक कोफिशिएंट होगा। यहाँ ये नहीं बताया जाएगा कि x का कोफिशिएंट बताइए या y का न्यूमरिक कोफिशिएंट बताइए, नहीं। न्यूमरिक कोफिशिएंट खाली बोल देगा तो समझ जाइए कि -3 के बारे में पूछ रहा है। यानी यहाँ -3xy में न्यूमरिक कोफिशिएंट क्या हुआ, -3 हुआ, ठीक है। और कोफिशिएंट जब पूछेगा तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो गया, -3x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, -3y। यानी कि जिसका कोफिशिएंट पूछेगा उसमें जो नंबर मल्टीप्लाई होगा दैट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ दैट नंबर, दैट वेरिएबल्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड टिल नाउ। अब इसमें ध्यान देंगे, हम लोग वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म्स, फैक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं और अब आज टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और कोफिशिएंट के बारे में भी पढ़ लिए। अब बात करते हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स की। लाइक टर्म्स क्या होता है, द टर्म्स हैविंग द सेम लिटल फैक्टर और वेरिएबल आर कॉल्ड लाइक टर्म। देखिएगा यहाँ 3xy, 4xy, 7xy, सभी में 3yx। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ भी xy है, वेरिएबल देखना है। वेरिएबल अगर सेम है तो लाइक टर्म्स कहलाएगा सर। यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है और ये yx को xy भी लिख सकते हैं। yx लिखे या xy एक ही बात होता है, इसलिए ये भी सेम है। यानी ये सब लाइक टर्म्स कहलाया, ठीक है। अगर वहीं पर रहता देखिए यहाँ 3xy है, यहाँ पे एक वेरिएबल xy है, दूसरा x है, तीसरा y है। यानी कि सब में वेरिएबल अलग अलग है। इसमें xy है, इसमें x है, इसमें y है। यानी ये कहलाया अनलाइक टर्म्स। यानी कह सकते हैं द टर्म्स नॉट हैविंग द सेम वेरिएबल आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। ओके, यानी जिसमें सेम वेरिएबल नहीं होता है वो सब अनलाइक टर्म कहलाते हैं, जिसमें सेम वेरिएबल होता है लास्ट में वो लाइक टर्म कहलाते हैं। वंस अगेन लिसन, अगर सेम वेरिएबल सभी में है जैसे इसमें है, ठीक है, तो ये लाइक टर्म कहलाए। अगर डिफरेंट वेरिएबल है यानी सेम वेरिएबल नहीं है तो ये अनलाइक टर्म कहला गए। किसी भी टर्म में अगर सेम वेरिएबल नहीं है अनलाइक टर्म्स, किसी भी टर्म में अगर सभी टर्म में सेम वेरिएबल है तो सब लाइक टर्म कहलाए, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग लाइक टर्म एंड नॉन लाइक टर्म भी डिस्कस कर चुके हैं। यानी मोस्ट प्रॉब्ली वी आर रेडी टू डू द एक्सरसाइज 8B। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड टिल नाउ व्हाट वी हैव एक्सप्लेन्ड। जो भी मैंने अभी तक समझाया मैं ये समझता हूँ, मैं ये मान सकता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे, शांतिपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे तो आप पूर्णतः समझ जाएंगे। ओके, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।